Good evening, students. How are you? I hope you all must be enjoying a sound health. So, our syllabus is almost completed. Only one chapter is pending, that is chapter number 5, verbs. We have left this chapter earlier, but now we will take this chapter. So, it is verb. You must have done verbs in earlier classes also. What is verb? Verbs tell us about the action, state of being and position. Verbs जो हैं हमें ये बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, which action has been happening, like laughing, drinking, jumping, dancing, washing, eating. All these are verbs. So there are three categories of verbs. Three kinds of verbs are: first is principal and auxiliary verbs. Second is transitive and intransitive verbs. And third is finite and non-finite verbs. Now we will do all these verbs step by step. So this is principal verb. Principal verb is also called main verb. These verbs can stand alone. For example, she helps me a lot. He played well. Stand alone का मतलब ये होता है, जैसे ये है ना, she के साथ helps लगा है, means helps does not need any helping verb. Is, am, are, was, were, has, have, इसके साथ कुछ नहीं लगा ना. So that is why they can stand all alone. These sentences are completed itself. He played well. Played. So in this sentence also the helping verb is not required. So this sentence is completed in itself. अपने आप में ये sentence complete है. So we call them main verb. कि जो helps और played है, these are main verbs, principal verbs. इनके साथ sentence complete है. Now come to auxiliary verbs. Auxiliary verbs are often used with other verbs, like they are playing tennis, she is singing a song. Now here the words that is highlighted in blue color, she are playing, is singing. अगर हम playing और singing alone use करते हैं then sentence will be incomplete. तो sentence जो है वो incomplete रह जाएगा अपने आप में. So these are called helping verbs. Helping verbs are called auxiliary verbs, like is, am, are, was, were, has, have, do, does, did. जितने भी मॉडल्स हैं can, could, may, might, shall, should, will, would, has to, have to, ये सभी क्या हैं? auxiliary verbs हैं होते हैं. All right. Now come to the second category, transitive verbs and intransitive verbs. Very important. Transitive verb which has an object. She sang a song, they played a match. The words that I have underlined, these are object. जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट लग के सेंटेंस कंप्लीट होता है, वी कॉल दैम ट्रांजिटिव वर्ब. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसने गाना गाया, गाना. शी सैंग अ सॉन्ग, सॉन्ग इज एन ऑब्जेक्ट. दे प्लेड अ मैच, उसने क्या खेला? मैच खेला. तो ये ऑब्जेक्ट है. नाउ intransitive verb. These verbs do not need an object to complete the meaning. इन verbs को अपना सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. लाइक सी बर्ड्स फ्लाई, शी स्लेप्ट. शी स्लेप्ट वो सो चुकी है. बर्ड्स फ्लाई, पक्षी जो है फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. अब इनमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, ठीक है. तो जब ऑब्जेक्ट के बिना ही सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग बताए, वी कॉल देम इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट लग के मीनिंग कंप्लीट होता है. इंट्रांजिटिव वर्ब्स में बिना ऑब्जेक्ट के ही मीनिंग कंप्लीट हो जाता है. नाउ कम टू द लास्ट कैटेगरी, दैट इज फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. Finite verbs. These verbs has a subject and can function as an independent clause or sentence. I won the match. My mother watched television. So the words that I have highlighted with blue color, these are finite verbs. जैसे principal verbs है, ऐसे ही finite verbs है. जैसे principal verb में भी अपना एक
जो है वर्ब लग के ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जैसे ये वॉन और वॉच्ड है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में दे डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, बस इनमें सब्जेक्ट नहीं होता अपना। लाइक सी माई मदर वॉज वॉचिंग, अब वॉज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा है और वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है और वॉचिंग। अब वॉचिंग का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इन दी सेकेंड सेंटेंस आई हैव वॉन द मैच, वॉन का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो जिनका अपना खुद का सब्जेक्ट ना हो वी कॉल देम नॉन फाइनाइट verbs, ठीक है। I know it's a complicated for you, but thing is that when you start to do the exercise, things will become easy. जब हम एक्सरसाइज करने स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन थिंग्स विल बिकम ईजी। रूल्स लर्न करने थोड़े मुश्किल होते हैं, बट एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट कर देते हैं देन रूल्स बिकम्स ईजी, रूल्स अपने आप माइंड में आते जाते हैं। नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैव ऑल्सो 3 कैटेगरी। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स की भी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव्स की पहचान है कि इसमें 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा होता है। शी लव्स टू सी मूवी, दे लाइक टू टेक कॉफी। दी वर्ड्स दैट आई हैव हाईलाइटेड विद रेड कलर दे आर इन्फिनेटिव वर्ब्स। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे आई लाइक टू गो टू दी मार्केट, आई लाइक टू सर्व पीपल। तो ये सब क्या है? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इन्फिनेटिव्स वर्ब्स हैं। सेकेंड है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में मोस्टली या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइक टायरिंग हो गया, वेटिंग हो गया, सीइंग होगा, प्लेइंग हो गया। और पास्ट पार्टिसिपल में सिंपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है। अब ये जो हैविंग टायर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये जो वेटिंग आउटसाइड है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। हैविंग टायर्ड शी वेंट टू स्लीप, थक हार के वो सोने के लिए चली गई। वेटिंग आउटसाइड इन दी सनलाइट शी फेल्ट अनोयड, अब वो सनलाइट में जो थी इतनी देर से खड़ी थी, दैट इज वाई शी गॉट इरिटेटेड, गुस्सा हो गई, ठीक है। तो पार्टिसिपल कैसे बनते हैं? इस तरह से बनते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के बन जाएंगे, या सिंपल आईएनजी लग जाएगा। जिरन, जिरन में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, सिंपल। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, सिंगिंग इज इज हॉबी, ठीक है। देन स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। तो ये सब क्या है? जिरन्स होता है। आपके जो मेन आपको समझने वाली बात वो है, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल और जिरन। ये 5 चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। बाकी सब आपको जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है चैप्टर को और क्लियर करने के लिए। ये जो है ना आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ये पार्ट, और इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरन, ये these things you needed to keep in your mind. So with this our chapter is completed. We'll discuss in a Zoom class also. Thank you so much and have a nice day.